Assalamu alaikum. Is Arzu Gul here? Tell her to start her presentation again. Unmute yourself, Arzu. Yes, ma'am. My topic is cognitive theory. First, we will see what's the meaning of cognitive. The word Uh, cognitive comes. Start from the examples from where you have left. Yes, ma'am. My first example is that when a child studies at a school, तो फिर उसको हम जो है शेक्सपियर की प्लेस डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसका माइंडसेट उतना डेवलप नहीं है। उसका माइंडसेट फिलहाल छोटे लेवल पे है तो हम उसको जो है छोटी चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम वही शेक्सपियर के प्लेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें इजीली समझ आ जाएगा और वो एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। Okay. और जो है हमारे एज ग्रुप के हिसाब से हमारी थिंकिंग चेंज होती रहती है। People think differently according to their age group. Cognition itself refers to the mental process or absorbing and retaining knowledge and information through the experiences of our life, our thinking, or we can say that our mindset changes. Cognition theory mainly focuses on the information that our brain receives. Ma'am, that's all from my side. Okay. Who is next? Now it's Laiba's turn. Okay. मरियम जी मरियम यस मैम लाइव पे स्टार्ट करेंगे अब Okay. अनम्यूट है Laiba. Sorry, Laiba was here. Her turn was here. Okay. ठीक है जी. हेलो Start मैम, करिए अस्सलाम लाइबा. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी मैम। Okay. मैम इसकी थर्ड एग्जांपल आरजू आरजू ने कॉन्गेटिव थ्योरी एक्सप्लेन की। उसकी थर्ड एग्जांपल ये है, देयर आर टू गर्ल्स। द फर्स्ट Start गर्ल from the बाउट अ examples ब्यूटीफुल again. ड्रेस एंड अपलोडेड हर पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। Start from the examples again, Laiba. ओके मैम। A child would think like an adult, and an adult would think like an age individual, and so thinking over time change. And a lot of cognitive scientists have given theories of cognition.
visual art and what level of thinking Shakespeare in grade 1 or 2, because it is not an appropriate level for such young kids. Similarly, a teacher will not be teaching accounting in Montessori level because students will not understand it, and lecture will be boring for them. Now, third example, there are two girls. The first girl bought a beautiful black dress and uploaded her picture on Instagram and got so many likes and compliments. The second girl got inspired from her dress. She go to the market and buy exactly the same dress. When people go abroad, they got inspired from the lifestyle of other people. Then they try to be like them. See, you guys have forgotten how to conclude yourself. Good. Yes, Mariam. Anybody else left? Yes, ma'am. Kainat Sheikh. It's last one. Okay. Yes, Kainat, please start. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Kaya Sheikh and my topic is Walaikum concept assalam. role theory. कॉन्सेप्ट रोल थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि ये एक थिएटर है जिसमें अलग अलग लोग जो लोग हैं वो अलग अलग किरदार अदा करते हैं, जिसमें जिसमें लोग अपने रोल्स अदा कर रहे होते हैं, जैसे कोई मदर का रोल, कोई टीचर का रोल, कोई सिस्टर का रोल, इस तरह हर किसी का अपना एक कैरेक्टर होता है। इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर 1 रोल, नंबर 2 पार्ट और देन स्क्रिप्ट। इट इज़ एग्जिबिटेड टू बिहेवियर। आप जो हैं वो कौन सा एक्ट, बिहेवियर और रोल कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसे रोल कहते हैं। जैसे एक टीचर है वो उसका क्या रोल है कि वो अपनी कॉपी चेक करेंगी, वो नोट्स बनाएंगी या वो बच्चों को गाइड करेंगी, तो ये उनका एक रोल है, ये उनकी एक्टिविटी है, ये उनका बिहेवियर है जो वो अपनी लाइफ में अदा कर रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास है पार्ट। पार्ट इज़ अ पोजीशन। जैसे अभी एक टीचर जैसे सुबह में एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद वो घर जाएगा तो वो कोई मदर है, किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है, किसी की जो है इस तरह से। तो जो उनका जो ये बिहेवियर है वो उनका पार्ट का एक लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है, और ये पार्ट एक पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेशन। जैसे एक वाइफ जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो जो हैं सिर्फ पर्सनल थॉट नहीं हो सकते, बल्कि कंबाइंस भी हो सकते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो एक्सपेक्टेशन है। ये हमारे पास खुद का बिहेवियर होता है, कि मुझे अपने आप को किस तरह रखना है, मुझे अपने आप को किस तरह से चलाना है। इसमें एंटिसिपेशन आ जाता है, जैसे कि मैं ये सोच कर रखूं कि मुझे क्या करना है। उसके बाद सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, ये सोचना कि टीचर को ये करना चाहिए, ये हमें पढ़ाएंगी, ये इस Please तरह से। stop. ये लाइन मुझे बताएं, like where a lab caught by a doctor functional role theory began with the work of a Lind on a 919360 formalized with the publications of a Parson 919510. Roles are not without effects, rather they are likely to have a characteristics, effects or function. Please explain. Yes.
Who is next in this group? Message me. Yes, Mariam, let me know who is next. Yes, ma'am. Complete हो गए ma'am. Okay. I hope so. Our presentation informative for you, everyone. Thank you so much, ma'am. Yes, it was indeed very informative. Okay. Yes, we have Adnan group. Where is Adnan? Are you present here? Are you going to message me again? Jaldi bataiye. Adnan, where are you? Adnan group, is it present here? Okay. Unmute yourself, Adnan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam. Excuse me. अदनान के बाद हमारे पास वो एक और ग्रुप है. Okay. Have your presentation here. Let's go there. Yes. Assalamu alaikum. Excuse me, it's opening at the moment. एक सेकंड, क्या है प्यारे कंप्यूटर साहब. Oh. Yes. एक सेकंड जी. Yes, Adnan, you can unmute yourself, please. Ji. Ji, ma'am. Okay. Ma'am, my slide, please. Where is your slide? Number 3. This one? Yes, ma'am. Okay. Assalamu alaikum. This is Muhammad Adnan Qureshi and the group leader. My group name is the Chamber of Knowledge. So our topic is syntactic semantic. Firstly, I start, and after me, my members will start their presentation. Syntactic semantic, basically syntactic is the syntax, the study of rules for the information of grammatical sentence in a language. The study of rules for the formation. Study of rules, we know that every language has the sentences and they has the rule. Like in English, it has the rule like the first subject, then verb, and then object. This is the rule, and after this, we can easily know what the person is saying and the meaning. Semantic is a meaning in any language. We can that's the interlink between syntactic and semantic. And the structure of sentence, as I said, that it has the structure, it has the order. The subject, then object, then the subject, then object, the subject, then verb, then object, sorry. And after this, next slide, please. Something happened to the slideshow. It's okay, I have my laptop. So shall I start, ma'am? Next slide. Yes, please go ahead. There Ambiguity. Students. There's another topic 9. is ambiguity. Semantic ambiguity occurs whenever one or more words within a sentence can be understood having two or more distinct meaning. Like when
two or more, one words have two or more meaning, like create confusion. When I just giving my example when it's my university example, so that's why I wrote local example. So मैं और मेरा दोस्त जो है बाइक पे जा रहे थे, मैं उर्दू में बताऊंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मैं और मेरा दोस्त बाइक पे जा रहे थे और मैंने सामने एक बंदे को देखा जिसने मेरी पिक्चर्स ली थी, तो मैंने उससे कहा कि शराफत से मेरी पिक्चर मुझे दे देना, एंड आई सेड हिम। तो उसने जब रास्ते में बाइक मेरे साथ वो बैठा हुआ था, तो उसने मुझे रास्ते में कहा कि शराफत तुम्हारी पिक्चर को क्या करेगा। नाउ दिस इज व्हाट एम्बिग्विटी इज, लाइक शराफत, तब वर्ड दोनों एक ही हैं, अब एक है नाम है बंदे का, दूसरी साइड पे जब हम लोकली बोलते हैं, व्हेन वी सेड लोकली, लाइक शराफत, लाइक पोलाइटली, लाइक समथिंग एल्स, सो दिस इज व्हाट एम्बिग्विटी इज। एंड नेक्स्ट स्लाइड। Okay, continue, please. Lexical ambiguity. Lexical ambiguity cause when two words have same form, like homonymy or homophomy, or when words has more than one meaning, polysemy. Like this is after this. My slide is structural ambiguity, and this is lexical ambiguity. Lexical ambiguity has especially words that has two meanings, like there is an example, I forget to sign the check. I forget to sign the check. His sign the same pronunciation, same spelling. Next, this might be the sign of stress. A girl which is sitting on the corner and he hold her head, and I said this must be the sign of stress. Like these both sentences are different, but the sign is same, like pronunciation, but the meaning is different. I wear a shirt and tie at work. Like this is also an example of lexical ambiguity. There's only one word which is ambiguous, tie. He hold to tie her hands together, like two friends, kids are holding their hands tight. So I saw bats. Which bats I have seen? It's playing or it's flying. These both are different. Loose and loose, two pairs. Home, I said homophomy. Homophomy is same. The spelling is different, but the pronunciation is same, totally same, everyone. And structural ambiguity. Structural ambiguity especially is used for the sentences. Sentence structure which has more than one meaning. The chicken is ready to eat. Like chicken is ready to eat. My mom called me that the chicken is ready to eat, come and eat. And I just thought that it's illogical example, but I am just explaining. The chicken is ready How to come eat, it's and I just illogical example? ये कैसे illogical Yes. example है? mean I'm just explaining, man. So please Wait. explain. I'm asking you कैसे illogical example है? The chicken is ready to eat. Like chicken is ready to eat, but I'm just imagining that the chicken is wearing the bib. उसने बिब पहना हुआ है, एंड चिकन जो hen है वो ईट कर रही है चिकन को. तो मतलब चिकन इज रेडी टू ईट, बोथ आर सेम. अब मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मॉम ने बुलाया कि आओ चिकन रेडी है खाने के लिए, बट आई जस्ट इमेजिन. लेकिन ये बच्चों में होता है, इट्स फॉर किड्स, एग्जांपल फॉर किड्स, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट जस्ट मेंशन दैट. सो we should be discussion violence on TV. हमें वायलेंस टीवी पे जो वायलेंस हो रही है उस पर डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन अगर इस समय दूसरे रुख से देखा जाए तो टीवी पर वायलेंस करनी चाहिए. हम टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं कि टीवी पर वायलेंस करें. That's all. That was my presentation, and next slide is thank you. And now Muzammil will explain their assignment presentation. Sorry. We should be discussion violence on the TV. Yes, sentence Ma'am, it's structure ही खराब है. something ambiguous. Sentence ही गलत है. जी मैम, थोड़ा गलत है, मुझे भी लगा था, लेकिन आई हैव मेंशन बस समझाने के लिए जस्ट. जी. और आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं. यहाँ पे देखिए,
कॉन्ट्राडिक्शन। वेरी गुड, क्या बात है आप लोगों की। जी हु इज नेक्स्ट? मुजम्मिल बताया आपने, मुजम्मिल किधर हैं? यस जी मुजम्मिल, प्लीज स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल, प्लीज स्टार्ट। मैम, before starting, I want to ask that मैम, how are you? आई एम फाइन, थैंक यू। यस, वो इसलिए कि मैम के क्योंकि आपके वॉइस से या जो आप वॉइस नोट्स भेजते हैं व्हाट्सएप में, तो आई थॉट अ लिटिल बिट आप की तबीयत थोड़ी सी मतलब आप मतलब अनवेल अनवेल हैं, तो यू आर राइट, आई मुझे होप। थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और मुझे बहुत बुरी खांसी भी है जो आपको सुनाई देगी इसके दौरान। यस मैम। थैंक यू। मैम, आई प्रे दैट may Allah give you a healthy life. जीते रहिए। थैंक यू, uh, Ma'am, today my topic is contradiction. ओके। और ये अदनान भाई ने थोड़ी सी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक की है। So, ma'am, first we go to the definition, what contradiction is. In semantics, a contradiction is a sentence which is false under all circumstances for every assignment of values of its basic expressions. तो इट मीन्स कि मैम ये एक सेंटेंस की एक किस्म है जो कि लॉजिकली देखा जाए तो वो बिल्कुल ही मतलब फॉल्स है, वो ट्रू हो ही नहीं सकती। लाइक दूसरी डेफिनेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, or a contradiction is a sentence which is necessarily false because of the senses of the words in the sentences. मतलब इसकी जो सेंस है, मतलब ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, उसमें ग्रामरली आप को कोई गलती महसूस नहीं होगी, लेकिन वो जो सेंस एक बना रहा है वो कॉन्ट्रडिक्शन में, वो ऐसा होता है कि वो कभी मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अभी ये कह दूं कि कायद आज़म इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इमरान खान, तो ये ग्रामेटिकली तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि कायद आज़म दोबारा से शायद जी उठें और इमरान खान के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली यही है। So, ma'am, please next slide. So now we are going to discuss the examples. In contradiction, both the sentences or their meaning can never be true, but they are grammatically correct. Grammatically correct हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, elephants can fly, कि हाथी उड़ सकते हैं। तो मतलब ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सही है, मतलब एलिफेंट्स कैन फ्लाई, बट सेंस ये कोई नहीं बनाता। कैट्स आर फिश, बिल्लियां जो है सो मछलियां हैं। तो अगर आप इसकी भी ग्रामर चेक करें, कैट्स प्लूरल है तो उसके साथ आर आ गया, लेकिन प्लीज लेकिन स्टॉप योर प्रेजेंटेशन। आपका ये 5 दफा तो 3 दफा तो मैंने सुन लिया है कि आपका फोन रिंग कर रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको साइलेंट पे कर दो। आप तो एक बंद कर दें या मैम, ये साइलेंट पे थोड़ा कर सा दें। फोन में मसला है, और ये मैम कुछ शैतान बच्चे हैं जो आपको पता है प्रेजेंटेशन, ये अब मैं प्रेजेंटेशन देने आया हूँ तो मुझे कॉल वगैरह से जानबूझ के आ रही है, और नंबर अननोन नंबर है, तो मैं लेकिन मुझे पता है हमारी क्लास के ही बच्चे हैं। जी, तो आप उसको थोड़ा सा साइलेंट पे कर दें, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। मैम, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है सो वॉइस ही बंद हो रही है, मतलब। अच्छा चलना, ठीक है, ओके, और यस कंटिन्यू। मैम, क्योंकि है मैम, यू नो दैट कि हर जगह ना कुछ लोग होते हैं जिनसे खुद कुछ होता नहीं है और वो दूसरों के मतलब टांगे खींच रहे होते हैं। सो मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो here we are continuing it, like earth is flat as well as round. तो वही कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना, कि अगर आप देखें ग्रामेटिकली ये सही है, बाकी जो है सो इसमें अगर हो सकता है पंक्चुएशन भी अगर हो तो वो सही हो सकता है, लेकिन ये सेंस नहीं बनाता। लाइक अर्थ कैन नेवर बी फ्लैट एज वेल एज राउंड, तो ये हो ही नहीं सकता। लाइक अनदर एग्जांपल इज आई सॉ शार्क्स डांसिंग
at roof. मतलब पहले तो सेंस नहीं बनता कि शार्क्स जो सो समंदर छोड़ के वो रूफ पर कैसे आए, और चलो आ भी गए तो अब डांस कर रहे हैं। और एंड हॉर्सेस ईट बीफ एंड हेड ग्रास, तो घोड़े जो है सो वो गोश्त खाते हैं और उनको घास से नफरत है। सो एंड मैनी मोर, डेड मैन अटेंड्स माय फोन कॉल, जो मरा हुआ आदमी वो मेरे फोन कॉल उठा रहा, मतलब अटेंड करता है। एंड सेमेंटिक्स इज स्टडीड इन इंजीनियरिंग। So here again, these are the examples that contradiction means a senseless sentence, but grammatically और दूसरे तर्ज से अगर आप देखेंगे तो वो करेक्ट होगा, लेकिन वो जो है सो सेंसलेस होता है, वो कोई एक सेंस नहीं बनाता। So it was my presentation. Thank you so much, ma'am. Welcome. मुजम्मिल, yes, this is how you conclude your presentation. ठीक है, सही है, मैं मानती हूँ आप नर्वस होंगे, परेशान होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे बता दो दें कि आपका टॉपिक अभी खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अदनान, यस अदनान, अदनान प्लीज बताइए कौन नेक्स्ट है। जी मैम, अब्दुल जब्बार है। मैम मेरी तबीयत आज बहुत खराब थी, इसी वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन आपने पूरा ताना दे दिया इंग्लिश का। और आपने मुझे बोला है अभी, ताना दिया है। What sort of क्या this is going on? Are we friends? I didn't know we मैम? were नहीं, friends. Abdul Jabbar, where are you? Abdul Jabbar, please unmute yourself. Abdul Jabbar, unmute yourself. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मेरी प्रेजेंटेशन है फिफ्थ पोजीशन। सो यू स्लाइड शो। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। कौन सा है आपका टॉपिक? इसके बाद है शायद ये presupposition. यस मैम। ओके, स्टार्ट। Page, यस। yes. Page position is something that a person believe to be truth, and he use as the beginning of agreement. Even thoughts be it has not be provide. मतलब इसका मैम, इसका मतलब ये है, तो वो चीज मतलब प्रूव नहीं है, मतलब प्रूव नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करता है, मतलब वो इस्तेमाल करता है और वो सच, ताकि वो रियलिटी पर बेसिस पर बिलीव करता है। एंड दो एग्जाम्पल, एंड द प्रोपोजिशन is what the speaker assumed to be the case before to making an U-turn. मतलब उससे पहले, उससे भी जो एड्रेस जो मतलब मिल जाए तो हम उस पर मतलब एज्यूम कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, टॉम सिस्टर वॉक टू अपार्टमेंट, मतलब टॉम एक, हमें एज्यूम ये कर रहे हैं, टॉम जब हम एक की सिस्टर है, उसकी एक मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम, एक की सिस्टर है, दूसरी बात क्या है, वो एक टू अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट ले रहे हैं, मतलब वो रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये हम एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी फ्यूचर में। और दूसरी बात है, हैज अ फादर अ ट्रीट पुलिस ऑफिसर, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, मतलब वो पुलिस ऑफिसर जो था वो रिटायर्ड था, हम सोच रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मतलब वो पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड था। ऐसे कर सकते हैं, जो बंदा कोई 2 दिन 3 के बाद रिटायर हो जाता है, उसको हम रिटायर नहीं बोल सकते हैं उसको। सो मैम नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। This is going यस to be a मैम। very long topic. What is next? Who is next? तो Okay, extension of 1 minute.
जी मैम। हेलो। Pritam Das, हेलो actually I'm trying to unmute you and it's जी muting जी you. मैम, I आवाज आ रही don't know what is happening here. Can you hear me? है मैम? देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम मैम, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। No. There is okay. There is a network problem and there is a problem with this time here as well. I think. ठीक है जी जी continue please. ओके मैम, टुडे माय टॉपिक इज एनोमली। एनोमली ये एक मतलब वर्ड है सिमेंटिक सिमेंटिक के अंदर। इसमें इसका मतलब होता है एबनॉर्मल या बेजाबती, बेतरतीबी। कोई भी सेंटेंस है, कोई जो वर्ड है वो तरतीब से नहीं हो और उसकी कोई मतलब जो है ना, तो उसकी मीनिंग ना हो, कहाँ इस्तेमाल होता है उसका कुछ पता ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा। समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, अनसर्टेन एंड वेरिड। मतलब वो चीजें जो है ना, जो उनका मतलब नहीं हो, वो कहावत हो या किसी इसी तरह के जो जुमले हो, इसी तरह वही हो, लेकिन उसके जो हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं हो किसी के ऊपर। सेकंड डेफिनेशन, समथिंग डिफरेंट, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज और नॉट इजी टू डिस्क्राइब। सो समथिंग डिफरेंट मतलब कुछ भी है कि ऐसा अजीब जुमला हो, एबनॉर्मल हो, जिसमें वो तरतीब से ना हो और स्ट्रेंज कुछ अजीब लगे और उसे डिस्क्राइब करना भी मुश्किल हो, तो वो वर्ड वर्ड या सेंटेंस उसे हम कहेंगे एनोमली। और इसकी थर्ड डेफिनेशन है सेमेंटिक एनोमली। Anomaly is a bit of language that does what it mean to do, but an abnormal like a word problem, combining problem and problem। जिस तरह यहाँ एग्जांपल दे गया है प्रॉब्लम, वो कंबाइन किया गया प्रॉब्लम, ट्रबल एंड प्रॉब्लम, इन दोनों को कंबाइन करके एक जो वर्ड न्यू बनाया गया, जिसके लिए हालांकि कोई मीनिंग भी नहीं है और इसे डिस्क्राइब करना भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये है एनोमली। नेक्स्ट Next क्या है आपका? स्लाइड। What is your next topic? नेक्स्ट स्लाइड मैम। आप बोल रहे हैं नहीं हो रही है मूव। आप बोलिए, प्रेजेंट करिए, स्लाइड पे मत जाइए, आप प्रेजेंट करते रहिए। अच्छा, उसमें कुछ एग्जांपल है जो मैं बताऊंगा, जैसे कि जी I'm trying to move कलरलेस it, don't worry, but आप करें। एग्जांपल है जैसे कि कलरलेस
ग्रीन फ्लावर। अब कलरलेस ग्रीन फ्लावर, कलरलेस तो है लेकिन उसका मतलब ग्रीन भी आ गया, तो कलरलेस ग्रीन फ्लावर कैसे हो सकता है? इसकी कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे हम कहेंगे एनोमली। और नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है ए फादर अगो। मतलब हम कुछ ऐसे ही कहते हैं कि कुछ साल अगो, या कोई ऐसे ही कहता है ए फादर अगो, मतलब मेरे अबू से पहले। तो इसका कोई मकसद नहीं है, और ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं। और The जैसे कि हम बोलते हैं original sentence was a mother ago, and it was written in a poem by a writer. सर में Just because आप लोग मदर को फादर कर देंगे तो हिस्ट्री चेंज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे. You are changing a history. A writer who wrote this sentence, a mother ago, आपने उसको फादर अगो जी कर दिया. मैम ऐसे एग्जांपल है ये तो। नहीं, ये एग्जाम्पल, इसके पीछे एक वो है ना, पीछे वो है कि ये एग्जाम्पल क्यों है. मैम ऐसे Original example if you are trying to give us, तो उसके पीछे एक वजह है. आप सिर्फ वर्डिंग चेंज कर देते हैं. एंड द Okay, कलरलेस next- ग्रीन फ्लावर्स नहीं है, ये भी एक वजह है. जी मैम, वजह है ना. जी मैम। तो मैम लेकिन कलरलेस है, उसके बाद ग्रीन आ रहा है, कलरलेस ग्रीन कैसे हो सकता है? कलरलेस भी और ग्रीन भी है, बेटा, वजह भी आई एम नहीं है नॉट इसमें। सेइंग दिस थिंग, आई एम सेइंग समथिंग एल्स जो आपने मानना नहीं है. जी ये मैम, मुझे मालूम है. सॉरी। ठीक है. ये जो आप जहां से ये एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उस एग्जाम्पल को उसी तरह से उठाएं. आपने इसको ओके मैम। चेंज किया है, इसको आपने चेंज किया है. ठीक. नहीं मैं वो खुद से बनाया ना, इसीलिए। आप खुद से बनाया आपने. ठीक, बिल्कुल. जी मैम।